Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Hassan, and today's topic is Nux vomica and cannabis indica poisoning. ये कुछ छोटे से poisons एक दो आपके रह गए हैं complete होने वाले, तो उनमें से ये एक और दो ये main poisons हैं. Start with Nux vomica, जिसको हम Strychnos nux vomica भी कहते हैं. This is basically a spinal poison और इसका उर्दू या हिंदी नाम जो है वो कुचला है. Nux vomica is mostly present in the form of seeds. As you can see, these are Nux vomica seeds. They flat, circular, RBC जैसी इनकी shape होती है. And if you look closely, you will find one side of these seeds is slightly concave and the other side is slightly convex, as you can see this one here. Other than that, it's got a characteristic shiny appearance with very small silky hair इसके ऊपर मौजूद होते हैं. और size इनका it's very small, 2.5 into 0.6, approximately the width of almost half of your finger. Active principles that are present in Nux vomica seeds, इसमें जो main आपका active principle है, that's strychnine, which is alkaloid in nature. Other than that, you'll also find brucine and loganin, which is a glucoside. Strychnine जो कि इसका main active principle है, characteristically अगर हम उसको देखें तो it's colorless, odorless and a bitter rhombic prism shaped crystal like उसकी appearance होती है. ठीक है, hardly dissolves in water, लेकिन it's pretty much alcohol soluble. Basically it's a respiratory stimulant, और अगर इसके हम uses देखें, commercial uses देखें, तो this is used as a rodenticide. चूहे मारने के काम आता है और stray dogs उनको मारने के काम आता है. कुछ societies में आज से कुछ अर्सा पहले it was also being used as a herbal remedy and homeopathic remedy. Other than that, it was being used as a purgative as well. Nerve tonic के तौर पे जो है वो ये इस्तेमाल किया जाता था. But now no longer this is being done. So strychnine की अगर हम बात करें तो strychnine का जो mechanism of action है, it works by comparatively antagonizing inhibitory neurotransmitter glycine. ठीक है, उसकी ये पोस्ट सिनेप्टिक जो अपटेक होती है उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से ये एक सेट ऑफ सिम्टम्स जो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये इसके अंदर आता है. याद रखिएगा, ग्लाइसिन इज बेसिकली एन इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. इसका मकसद ये है कि जो आपकी कंट्रोल्ड मसल कंट्रैक्शन है उसको ये रेगुलेट करता है, एंड इट इज देयर टू स्टॉप द ऑनगोइंग मसल कंट्रैक्शन. स्ट्रिक्नीन से क्या होता है कि दिस इनहिबिटिंग इफेक्ट इज रिड्यूस्ड. ठीक है, जिसकी वजह से आपके जो इनहिबिशन है मसल कंट्रैक्शन की वो नहीं होती, और उससे मोटर न्यूरॉन्स दे डू नॉट स्टॉप द स्टिमुलस, और मुसलसल जो इनकम्प्लीट और विगरस किस्म की मसल कंट्रैक्शंस है वो आपको देखने में मिलते हैं, जिसको हम रिलीज एक्साइटेशन का नाम देते हैं. This action can be very easily seen in the anterior horn cells of the brain. ये छोटा सा clip है. You can play this thing. This is basically a frog जिसको के strychnine का एक थोड़ा सा short दिया गया है. Just try to observe his muscular body movement. This is the effect of strychnine. As you can see, the tremors, also arch shape, and as you can see the muscle twitching as well. But you have to be quick because the effect doesn't last so long. And each time you poke, you can see the muscles twitching. So again, this is strychnine. As you can see, when you lie on its back, this is how it looks like, arch shape. Strychnine. हो गई जैसे उपस्थित होने के अंदर होती है. Play it again.
This is the effect of strychnine. As you can see, the tremors, also arch shape. As it, you can see the muscle twitching as well. But you have to be quick because the effect doesn't last so long. And each time you poke, you can see the muscles twitching. So again, this is strychnine. As you can see, when you lie on its back, this is how it looks like, arch shape. Strychnine. So you can well imagine कि जब ये किसी बंदे के अंदर दिया जाता है तो उसके क्या हालात होते होंगे. The signs and symptoms, they start appearing within approximately 15 to 30 minutes of strychnine poisoning ingestion. एक conscious seizure हम इसको कहते होते हैं, ठीक है. इसमें the patient is conscious and he knows कि उसको ये seizure हो रहा है और it's a characteristic sign of strychnine poisoning. Other than that, जो symptoms आते हैं strychnine poisoning के अंदर, that's bitter taste, एक choking sensation आपको feel होती है throat के अंदर, there's stiffness in the neck, there's stiffness of the face. The prodromal symptoms, there are mostly restlessness, ठीक है, और rigidity increase हो जाती है muscles की, there's increased muscular twitching, जिस तरह की frog वाली case में आपने देखा. The face appears cyanosed. This is a screenshot from a very famous television series. इसके अंदर ये एक बड़ा मशहूर कैरेक्टर था. उसके अंदर आप देखो तो आपको साइंस काफी हद तक strychnine poison से जो poisoning है उससे मिलते जुलते आपको नजर आएंगे. The face becomes cyanosed. The look is anxious. The eyes are staring. The eyeballs are prominent, and pupils are dilated to some extent. The mouth and the nostrils, they become filled with blood-stained. This is a characteristic appearance of a person who is almost about to die from strychnine poisoning. Convulsions जो हैं, जिस तरह मैंने पहले बताया कि active convulsions, they are a characteristic sign of this poisoning. इसके अंदर जो आपको सबसे पहला जो sign आपको मिलता है convulsion के अंदर, that's risus sardonicus, जिसके अंदर you will find contraction of the jaw, facial muscles. Person बिल्कुल अपने जबड़े जो होता है वो बिल्कुल अपने साथ कड़ा लेता है और अपने चेहरे बिल्कुल मुंह का बंद कर लेता है बहुत टाइटली. Other than that, anti-gravity muscles के अंदर भी आपको hyper extension नजर आएगी, जिसको हम opisthotonus का नाम देते हैं. This is opisthotonus. As you can see, ये बिल्कुल इसकी back जो है वो arched है. Just remember that frog end पर आपको नजर आ रहा था. Other than that, abdominal muscles के अंदर भी जो है वो spasm हो जाता है, जिसकी वजह से body at times जो होता है वो forward bend के साथ आती है या sideways bend हो जाती है. Convulsions का जो duration होता है, it's approximately 2 minutes, और इन convulsions के दरमियान the muscles they become completely relaxed और patient बज़ाहिर ठीक लगता है, लेकिन इन convulsions की वजह से वो exhaust हो जाता है और breathing जो होती है उसको convulsion के बाद जो होती है वो थोड़ी labored होती है. It's difficult. प्रॉब्लम क्या होती है कि 5 से 15 मिनट या अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनट के बाद कोई स्लाइटली फिजिकल इम्पल्स आ जाए, कोई तो किसी ने टच कर दिया, ठीक है, इसके अलावा अगर उसको कोई नॉइज ऐसी सुनाई देती है, सडन लाउड नॉइज, ठीक है, तो दैट कैन ट्रिगर द इम्पल्सेस अगेन. जिस तरह हमने फ्रॉग वाले वीडियो में देखा कि उसको जब उसने टैप किया था तो इट स्टार्टेड हैविंग कन्वर्जन्स अगेन. उसी तरह ह्यूमन सब्जेक्ट्स के अंदर भी ऐसे ही देखा गया है कि 5 से 15 मिनट के बाद कोई ऐसी फिजिकल या ऑडिटरी इंपल्स आती है तो उसके बाद द पेशेंट स्टार्ट्स टू कन्वल्स अगेन. दिस इज एज आई टोल्ड यू opisthotonus. इसमें जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं आपके बैक के, ठीक है, दे आर्च और ये कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हो जाती है. द पर्सन बॉडी बिकम्स वेरी रिजिड. The death can occur within approximately 4, 5 or maximum 6 convulsions because the patient, he stops breathing. The sad part is that the consciousness is not lost and the mind is extremely clear and the patient knows that what is happening to him till the time he expires. और जो इसमें death की जो specific reason है, that's due to the medullary paralysis या asphyxia, which is mostly due to spasm of the respiratory muscles,
जो कि एग्जॉशन की वजह से जो है वो स्पैज्म में। Fatal dose for strychnine is approximately 15 to 50 milligrams. If you look at it more specifically, it is 1 to 2 milligrams per kg body weight. या फिर 1 crushed seed of 2.5 into 0.6 centimeters. That is sufficient to kill a person in a time period of around 1 to 2 hours. 1 से 2 घंटे के अंदर इसका fatal period जो है वो complete हो जाता है। ट्रीटमेंट का जहाँ तक सवाल है तो उसमें आपको शायद ही कोई स्पेसिफिक एंटीडोट जो है वो मिले, और इट्स अ वेरी लीथल पॉइजन, और इसको ट्रीट करना, इसकी टॉक्सिकोलॉजी इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज नॉट इजी, और इट्स नॉट वेरी प्रॉमिसिंग। इन शॉर्ट, मेंटेन अ क्लियर एयरवे एंड एडिक्वेट वेंटिलेशन, बिकॉज इसके अंदर सबसे अभी हमने पढ़ा कि जो रेस्पिरेटरी मसल्स हैं दे गो इनटू स्पैज्म एंड द पर्सन फील्स टाइटनेस अराउंड द नेक, इसलिए यू हैव टू इंश्योर दैट द एयरवेज आर मेंटेन्ड एंड देयर इज गुड वेंटिलेशन। कन्वर्जन्स को कंट्रोल करने के लिए आपने पेशेंट को प्रेफरेबली एक डार्क एरिया में शिफ्ट कर देना, ठीक है, जहाँ पर उसको किसी किस्म की कोई एक्स्ट्रा नॉइज या डिस्टर्बेंस या गैर जरूरी टचिंग जो है वो ना हो, बिकॉज simplest of touch can start the convulsions again. Benzodiazepines इसमें दी जाती हैं muscular hyperactivity को कंट्रोल करने के लिए। Other than that, barbiturates भी दिए जा सकते हैं, pentobarbital, sodium amytal, ठीक है। इसकी डोजेज जो होती है that's approximately 300 to 600 milligrams intravenous आप दे सकते हैं। If somebody has ingested strychnine तो उसका gastric lavage किया जाता है with potassium permanganate, ठीक है। और अगर that is obviously if there are no convulsions, because convulsions के साथ gastric lavage करना it's very difficult. Activated charcoal भी दिया जा सकता है, because ये जो unabsorbed strychnine है उसको ये अपने साथ adhere कर लेता है, और it is usually effective अगर उसको आप 1 घंटे के अंदर दे दें इंजेक्शन से। हाइपोथर्मिया को आप एज यू नो कि कूलिंग से कंट्रोल करते हैं, और कूलिंग जो है वो आपने ठंडे पानी में उसको बिठा दें उसको, या फिर उसको जो है वो मिस्ट फैंस या कूलिंग ब्लैंकेट्स होते हैं वो आप दे सकते हैं। एज यू नो दैट इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। अदर देन दैट यू हैव टू ट्रीट हिम सिम्प्टोमेटिकली, उसके जो भी सिम्टम्स हैं आपने उनको ट्रीट करना है। बट हैविंग डन ऑल ऑफ दिस, the treatment is not very promising, and it's not very easy for anyone to survive after a good amount of strychnine has been taken. Postmortem findings कोई as such आपको characteristic postmortem findings में नहीं मिलेगी। Rigor mortis, it seems to appear early in a patient of strychnine poisoning because the muscles, they are continuously in a phase of contraction and relaxation, और बड़ी severe किस्म की convulsions आती हैं, इसीलिए rigor mortis भी इसमें जल्दी आता है। एस्फिक्सियल साइंस आपको जो है वो इसके अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर आपके क्रिटिकल हेमरेजेस हैं, आपकी साइनोसिस है, ये टिपिकल जो साइंस होते हैं एस्फिक्सिया के वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। एक्स्ट्रावेजेटेड ब्लड इन द मसल्स कैन बी फाउंड, और विसरास के अंदर जो है वो कंजेशन आपको नजर आएगी। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स, it's mostly accidental, the death, and it's accidental due to an overdose. इसके अलावा जिस तरह मैंने पहले कहा कि कुछ सोसाइटीज में अभी भी इसको जो है वो एक होम्योपैथिक रेमेडी और हर्बल रेमेडी के तौर पर लिया जा रहा है, तो वहाँ पर जो क्वैक्स इसको दे रहे हैं उनकी वजह से भी कैन कॉज डेथ। और अगर कोई गलती से कोई और दवाई समझ के इसको ले ले तो नेचुरली, या फिर बच्चे जो हैं अगर वो कुछ चीज उठा के मुंह में डाल लेता, दैट कैन ऑल्सो बी an issue. It's also been used as an aphrodisiac, or like I said earlier, it's still used to kill dogs and rats. इसकी चूंकि काफी सिमिलैरिटी है टेटनस के साथ, इसलिए कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको आइडिया होना चाहिए ताकि आपको फर्क पता चल सके कि स्ट्रिक्नीन और टेटनस के अंदर जो है वो थोड़े से पॉइंट्स हैं डिफरेंस वाले। उसमें सबसे पहले तो ये है कि टेटनस के अंदर आपको कोई फिजिकल ट्रॉमा की हिस्ट्री मौजूद होगी, पेशेंट सड़क के ऊपर गिरा या कुछ चीज उसको लग गई, कोई रस्टी नेल या इस किस्म की कोई चीज उसको जो है वो उससे चोट लग जाती है, वो हिस्ट्री होगी। स्ट्रिक्नीन के अंदर नेचुरली पॉइजन है तो नहीं होगी। ऑनसेट इज ग्रेजुअल इन टेटनस,
स्ट्रिक्नीन के अंदर बहुत सवेयर और बहुत सडन और बहुत रैपिड होता है इसका साइट ऑफ एक्शन। जैसे मैंने पहले कहा था कि स्ट्रिक्नीन जो है वहाँ पर जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है उसमें जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लाइसिन है उसके ऊपर ये एक्ट करती है, और जो मसल्स इफेक्टेड होते हैं या मोस्टली ऑल ऑफ देम एंड दे आर आल्सो इफेक्टेड एट द सेम टाइम। टेटनस के अंदर जो है ये आपको पिस्टोटोनस और लॉक जॉ ये सारी चीजें आपको ग्रेजुअल मिलती हैं, आपको एक ही वक्त में सारे सिम्टम्स ये नहीं आते, ठीक है। टेटनस के अंदर इज कैरेक्टरिस्टिक लॉक जॉ, और स्ट्रिक्नीन के अंदर जो है वो यूजुअली आपको मिलता तो नहीं है, कुछ केसेस में होता जरूर है, बट इट डज नॉट स्टार्ट एज अ लॉक जॉ। मस्कुलर कंडीशन इन टेटनस इज रिजिड, मुसलसल रहती है, जबकि स्ट्रिक्नीन के अंदर इट गेट्स रिलैक्स्ड इन बिटवीन कन्वर्जेंस। टेटनस का जो फेटल पीरियड है दैट्स मोर देन 1 day or 24 hours, whereas strychnine का जो है it's very low, it's approximately like I stated earlier कि 1 to 2 hours के अंदर जो है वो पेशेंट एक्सपायर कर जाता है। और अगर आप इसका केमिकल एनालिसिस कराएं तो उसके अंदर आपको आसानी से आपको स्ट्रिक्नीन जो है वो मिल जाएगा। टेटनस के अंदर आपको पता है कि क्लोस्ट्रीडियम टेटनी जो होता है करवाता है, इसलिए यू वोंट बी एबल टू फाइंड एनी केमिकल। Progression of strychnine poisoning, it slowly gets worse, whereas tetanus के अंदर जो है वो वेरिएशंस मिलती हैं आपको, बाज का टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, बाज का पेशेंट बहुत जल्दी डिटीरियोरेट करता है। सो दीज आर सम डिफरेंसेस दैट यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ कि इसको आपने स्ट्रिक्नीन को टेटनस से डिफरेंशिएट कैसे करना है। The second topic for today is cannabis indica, which is basically a deliriant. Active principle इसके अंदर is an oleoresin, that is cannabinol, ठीक है, it's a fat soluble oleoresin. Other than that आपको cannabis indica के अंदर benzopyrene भी आपको मिलता है, which is a known carcinogen. Cannabis indica इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पर आपको आसानी ये दस्तयाब है। इसके अलावा इसके आपको अमेरिकन रीजन्स में और मैक्सिकन रीजन्स में आपको स्पेसिफिकली बहुत इजीली और बहुत कॉमनली आपको ये जो है वो मिलता है। इसकी कुछ प्रिपरेशंस हैं जिसमें अगर हम देखें तो ज़्यादातर ये भंग की शक्ल में जो है वो आपको कैनबिस इंडिका अवेलेबल होती है, ठीक है, गांजा इसको कहते हैं। और अदर देन दैट थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट है दैट्स चरस या हशीश भी जिसको कहा जाता है। भांग जो होती है it's a set of dried leaves, fruit shoots होते हैं, ब्राउन सा इसका कलर बन जाता है, और it's 15%, it's the least of all potent drugs। शायद यही वजह है कि इसको एज अ बेवरेज जो है वो अक्रॉस द बॉर्डर जो कंट्री है वहाँ पर इसको बड़ा इजीली और बहुत कॉमनली जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। Whereas गांजा जो है it's called a rusty green color, और this is more potent, the active principles are 25% active, और ये ज़्यादातर जो है वो टोबैको के साथ या इसको पाइप्स में या हुक्के में डाल के जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आम ज़बान में कहते हैं कि जी मतलब गांजा फूंक के आया। ये चरस जो होती है it's basically made up of resinous exudates, leaves और stems को जो है उनको सुखाया जाता है, फिर उसके बाद उनको ब्लॉक्स की शक्ल में इस तरह की, यहाँ पर ये चॉकलेट के जैसा यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है, उस शक्ल में इसको बना देते हैं। दिस इज मोस्टली डार्क ब्राउन, और इवन पाकिस्तान के कुछ जो नॉर्दर्न एरियाज वाली बेल्ट है वहाँ पर इसको थोड़ा ब्लैकिश सी इसकी अपीयरेंस होती है, डार्क ब्राउनिश ब्लैकिश सी। एंड दिस इज द मोस्ट पोटेंट ऑफ ऑल थ्री of the cannabis indica preparations. It's usually mixed with tobacco, और इसको हुक्के में या पाइप्स के अंदर या सिगरेट्स के अंदर भी जो है वो इसको इस्तेमाल करते हैं, जिसको आम जुबान में हम कहते हैं कि सिगरेट भरी जा रही है। That is basically this thing. Actions इसके होते क्या हैं, ये काम कैसे करता है? Basically इसके अंदर THC tetrahydrocannabinol होता है, ठीक है। It binds to the anandamide receptors in the brain, ठीक है, जिनका एक स्टिमुलेंट के तौर पे यूज हो सकते हैं, सेडेटिव के तौर पे भी यूज हो सकते हैं, या इससे हेलुसिनोजेंस जो होते हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, कैन कॉज हेलुसिनेशंस एज वेल, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपने इसको कितनी डोज में आपने इसको इस्तेमाल किया और कितना टाइम गुजर गया इसको कंज्यूम करने का। लाइक आई स्टेटेड अर्लियर कि भंग जो होती है इट्स द लीस्ट ऑफ पोटेंट, जिसको सिद्धि या पत्ती के नाम से भी जो मशहूर है,
उसके सिम्टम्स थोड़े से और उसकी जो साइड इफेक्ट्स हैं वो थोड़े कम या थोड़े उसकी कम पोटेंसी की वजह से नेचुरली कम होते हैं कंपेयर टू चरस। इसके अलावा इट ऑल्सो कॉजेज कैटेकोलामीन रिलीज, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है और आपके जितने भी सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस होते हैं वो आपके डिक्रीज कर जाएंगे, जिसकी वजह से द पेशेंट्स कैन सफर फ्रॉम ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। इसीलिए लोग जो है वो इसको इस्तेमाल करके अक्सर चलते चलते गिर जाते हैं ड्यू टू हाइपोटेंशन। इसकी साइंस एंड सिम्टम्स के ऊपर अगर आप बात करें तो इसको हम दो स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज इज द स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट। इसके अंदर यूजुअली जिस तरह हमने देखा है पहले भी कुछ पर्सन्स के अंदर कि इनिशियली देयर इज अ फीलिंग ऑफ यूफोरिया, एक वेलबींग की, और मरीज बड़ा खुश और बड़ा हैप्पी फील करता है, इज इन अ ड्रीमी स्टेट, ठीक है, और उसको ऐसा लगता है कि टाइम जो वो बहुत स्लोली गुजर रहा है और उसको एक फॉल्स सेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो डेवलप कर लेता है वो। लेकिन इसका प्रॉब्लम साथ में क्या होता है कि उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है, उसको हेलुसिनेशंस और इल्यूजन्स नजर आने शुरू हो जाते हैं, इज डिसोरिएंटेड, और इसी डिसोरिएंटेशन के अंदर अगर वो गाड़ी या बाइक या कोई भी मोटर व्हीकल अगर ऑपरेट करता है तो नेचुरली उसकी रिफ्लेक्सेस भी चूंकि स्लो है तो ही इज बाउंड टू गेट इनटू सम एनी सॉर्ट ऑफ एक्सीडेंट। देयर इज आल्सो एन इंक्रीज्ड एपेटाइट, ठीक है, प्यास बहुत लगती है, नोजिया, हेडेक, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन जिस तरह मैंने पहले भी कहा, स्पीच उसकी बहुत स्लर्ड हो जाती है, एंड देयर इज एन इंक्रीज्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी। दिस इज ऑल हैपनिंग इन अ स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। ये लेने के कुछ अरसे के बाद, कंज्यूम करने के कुछ अरसे के बाद ये स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट जो है वो पेशेंट के ऊपर आती है। एंड द सेकंड इज द स्टेज ऑफ नार्कोसिस, जिसके अंदर इनकोऑर्डिनेशन, कंफ्यूजन, देयर इज एटेक्सिया, ठीक है। Other than that, the person after using this drug, he can go into a state of deep sleep, और जब वो उठता है there is usually hangover या nausea होता है। Other than that, कुछ subjects के अंदर there is also depression, और if the dose is naturally taken in a pretty high amount तो उसमें ultimately coma या कोलैप्स, या अगर कुछ ज्यादा ही उसने ले लिया तो फिर it can also cause death. Fatal dose for these specific preparations, इसमें भंग जो होती है that's approximately 10 grams per kg of the body weight is sufficient to kill a person. Charas is 2 grams, whereas ganja जो होता है वो 8 grams per kg body weight के लिहाज से required होता है। Fatal period approximately 10 to 12 hours इसके अंदर लग जाते हैं, after which the person usually expires. जहाँ तक ट्रीटमेंट का ताल्लुक है तो यू स्टार्ट विद द गैस्ट्रिक लिवाज। गैस्ट्रिक लिवाज आप नीम गर्म पानी से करते हैं। अदर देन दैट आप उसको कैफीन वाली बेवरेजेस जिसके अंदर देयर इज वेरी स्ट्रॉन्ग टी, कॉफी, ताकि जो उसको एक ड्राउजीनेस है वो खत्म हो। इफ यू फील दैट ही इज इन अ स्टेट ऑफ ओवरडोज तो आप उसको आर्टिफिशियली रेस्पिरेशन भी आप उसको दे सकते हैं। पर्गेटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो जितनी उसने कंज्यूम की है बाहर निकले उसके। अदर देन दैट आप 50% ग्लूकोज या डेक्सट्रोज सोल्यूशन 100 ml का वो दिया जा सकता है। एलेक्सॉन एज एन एंटीडोट ऑफ सॉर्ट्स दी जा सकती है। और इफ द पेशेंट बिकम्स वायलेंट, अग्रेसिव हो जाता है आपके साथ, तो आप उसको डायजेपाम भी जो है वो दे सकते हैं। As far as the postmortem findings are concerned, they are non-specific, और इसके अंदर भी आपको ज्यादातर जो है वो एस्फिक्सियल चेंजेस आपको नजर आएंगे, बिकॉज ये भी अल्टीमेटली जाकर इसने रेस्पिरेटरी डिप्रेशन जो होता है वो कॉज करवानी होती है और द पर्सन कैन अल्टीमेटली एक्सपायर। जहां तक इसके मेडिको लीगल एस्पेक्ट्स का ताल्लुक है, मोस्ट ऑफ द केसेस इन दिस पॉइजनिंग दे आर एक्सीडेंटल या फिर प्रोलॉन्ग यूजर थे, क्रॉनिक अब्यूजर थे, जिसकी वजह से उनको ये मसला हुआ है। इसकी जो यूजेस हैं द मोस्टली नेगेटिव। माजूम भी एक इसकी प्रिपरेशन होती है जिसके अंदर एक्टिव प्रिंसिपल इज रिलेटिवली लोअर, ठीक है। ये लोग इस्तेमाल करते हैं रॉबरी से पहले, या फिर इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज टू सूद द नर्व्स। एक्साइटमेंट जो होती है या जो नर्वसनेस होती है उसको कम करने के लिए इट कैन ऑल्सो बी यूज। अदर देन दैट एफ्रोडाइजिक के तौर पर भी यूज हो सकती है टू इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ कोइटस, और बच्चों के अंदर ये देखा गया है कि इसको चॉकलेट्स में इस्तेमाल किया जाता है इसकी यूफोरिक इफेक्ट्स के लिए।
एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों का FCQ आता होता है UHS के अंदर, और अक्सर उसमें जो है वो चीज पूछी जाती है, दैट इज रन एमक. रन एमक होता क्या है? इट्स बेसिकली अ साइकिक डिस्टर्बेंस which results from a continued or continuous use of the consumption of cannabis. Intake के बाद there is a small period of depression which is usually followed by excitation. Person he becomes confused or he can attempt to kill the people around him. The addict initially he kills the person जिसके साथ उसको कोई ना कोई grudge हो, या फिर उसकी कोई enmity किसी किस्म की जो है वो चल रही हो, या फिर उसको रोकने की कोशिश करे. Until the homicidal tendency lasts, वो किसी ना किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, और ultimately he commits either suicide or he surrenders himself. Okay, that's it for today. Hopefully there are no questions or queries. Please feel free to ask WhatsApp.